Good afternoon, students. Today we are going to discuss meaning of ex-post saving and ex-post investment. Ex-post saving means the actual saving that occurred during a year. It is not planned saving that it is planned to save in the future. No, it is not the plan. It is actual. Therefore, post, what is the post means बाद में. So whatever is saved in a particular year is ex-post saving. And similar to that, there is ex-post investment. Ex-post investment का मतलब होता है कि the amount which is invested for a particular year, that is the ex-post investment. So ex-post saving means the actual saving that happens during a year, and ex-post investment means the investment which is done during a year. So this is not the planned investment, this is the actual investment that occurs. So this thing you should remember, this actual. Ex-post saving and ex-post investment are equal at all levels of income because it is assumed that all savings will be investment. Now, one of the most important concepts in the economics is that S equal to I, that is saving is equal to investment. Now, it may be, awkward information for the students who are not related to economics, who are not studying economics, who are studying different streams, who are from different streams like science or any other things. But as a students of economics, as a students of commerce, we should understand that yes, this is true. It is not the different thing that saving is not equal to investment. No, saving is equal to investment, and this is the proof in the economics that S is equal to I. So when an economy is in equilibrium, that time saving is equal to investment. So S is equal to I, saving is equal to investment. ये आपको याद रखना है माइंड में कि सेविंग जो है इन्वेस्टमेंट के बराबर होता है. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऐसा एज्यूम किया गया कि जो कुछ भी सेव किया जाता है, हम लोग जो कुछ भी बचा के रखते हैं बैंक में, तो बैंक में ऐसे ही पड़ा हुआ नहीं रहता है, वो उसको फिर जो है उसको इन्वेस्ट किया जाता है. बैंक से जो है बिजनेसमैन जो है उस मनी को ले लेता है और फिर उसको जो है इन्वेस्ट कर देता है. तो फाइनली जो कुछ भी सेव हुआ वो इन्वेस्ट हो गया. तो ऐसा एज्यूम करके कि जो कुछ भी सेव कर रहे हैं वो सब फिर जो है इन्वेस्ट हो जाता है. इसलिए सेविंग का वैल्यू, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू दोनों जो है आपको इक्वल होता है. जो कुछ भी इन्वेस्ट किया जाता है फिर जो है वो सेव हो जाता है. सो बोथ आर द सेम थिंग. However, we are not going to learn in details, but we can derive how saving is equal to investment. When we discuss aggregate demand and aggregate supply, at that time we saw that how saving is equal to investment. However, we are going to see once again. We know that y is equal to c plus s. This is important equation. This is important formula. Means aggregate supply is equal to c plus s. C is consumption, S is saving. यानी कि जो कुछ भी आपको इनकम जनरेट होता है, सप्लाई का मतलब क्या हुआ कि इट इज टोटल सप्लाई का मतलब क्या होगा, टोटल वैल्यू ऑफ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर ए पार्टिकुलर ईयर. तो सप्लाई का मतलब ये हो गया कि जो गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हो रहा है उसका वैल्यू. तो कोई भी गुड्स एंड सर्विस जो प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम लोग किस तरह से मेजर करते हैं? मनी से मेजर करते हैं. यदि एक बिस्कुट का कीमत है 10 रुपया
और 10 बिस्कुट को प्रोड्यूस किया गया, इसका मतलब सप्लाई कितना हुआ? 10 × 10 100 रुपीज़। तो हम लोग ऐसा नहीं बोलते हैं कि जो सप्लाई हुआ वो 100 बिस्कुट सप्लाई हुआ, सॉरी 10 बिस्कुट सप्लाई हुआ, बल्कि हम लोग ऐसा बोलते हैं कि जो सप्लाई हुआ वो 100 रुपीज़ सप्लाई हुआ। एक बिस्कुट का कीमत है 10 रुपया और 10 बिस्कुट यदि प्रोड्यूस हुआ तो टोटल कितना कीमत का प्रोड्यूस हुआ? 100 रुपीज़ का प्रोड्यूस हुआ, क्योंकि एक का कीमत है 10 रुपया, तो 100 रुपीज़ सप्लाई हुआ। तो वो जो 100 रुपीज़ सप्लाई हुआ वो किसी का इनकम है। हम लोग जो बिस्कुट बनाने में जो हम लोग को खर्च हुआ, किसी को हम लोग दिए हैं, लेबर को दिए हैं, रॉ मटेरियल्स के लिए दिए हैं, मशीन का जो हम लोग ये दिए हैं, इंटरेस्ट दिए हैं, कैपिटल जो हम लोग लिए उसका इंटरेस्ट दिए हैं, लैंड का रेंट दिए हैं, तो वो किसी का इनकम हो गया। और वो इनकम को जो है वो क्या करेगा? या तो कंज्यूम करेगा या सेव करेगा। तो इसीलिए जो एग्रीगेट सप्लाई हुआ, वाई जो है, इनकम जो है वो किस पे खर्च होगा? कंजम्पशन पे एंड सेविंग पे। इसीलिए हम लोग लिखते हैं y = C+S। इसीलिए हम लोग एग्रीगेट सप्लाई = C+S लिखते हैं। उसी तरह से एग्रीगेट डिमांड = C+I, हम लोग इसको पढ़ चुके हैं कि एग्रीगेट डिमांड जो है उसका वैल्यू होता है C+I, यानी कि कंजम्पशन डिमांड प्लस इन्वेस्टमेंट डिमांड। जो डिमांड होता है कोई गुड्स एंड सर्विस का, वो तो या तो कंज्यूम करने के लिए होता है या फिर उसको जो है इन्वेस्ट करने के लिए होता है। कैपिटल गुड्स का जो आपको डिमांड होता है वो इन्वेस्ट करने के लिए होता है, वो इन्वेस्टमेंट डिमांड हुआ। तो इसलिए y = C+I। तो y = C+S एंड y = C+I, ये जो दो आपको फार्मूला देख रहे हैं आप, इस फार्मूला को आपको याद रखना है। इस दो फार्मूला को आपको हमेशा याद रखना है। एग्रीगेट सप्लाई y = C+S एंड एग्रीगेट डिमांड y = C+I, क्योंकि ये दोनों का हम लोग यूज करके बहुत सारे हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आगे भी आ रहा है टॉपिक्स जिसमें हम लोग इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। नाउ व्हेन वी सी दिस टू इक्वेशंस y = C+S एंड y = C+I, तो हम लोग को ये नज़र आता है कि दोनों इक्वेशन में y कॉमन है। y इसमें भी है, ऊपर वाले में भी, और नीचे वाले में भी y है। तो हम लोग क्या किए? C+S = C+I हम लोग यहाँ पे इक्वल कर दिए, क्योंकि y चूँकि कॉमन है तो जो C+S = C+I हो जाएगा। और C दोनों में कॉमन है, बोथ साइड्स, C इज इन लेफ्ट हैंड साइड एज वेल एज इन राइट हैंड साइड। तो C जो है आपको यहाँ पे हम लोग क्रॉस कर देंगे, कट जाएगा, बच जाएगा S एंड I, सो S = I। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि S = I कैसे हुआ, which means saving is equal to investment। तो सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, ये हम लोग यहाँ पे डिराइव किए कैसे होता है, कैसे आया। पहले y = C+S, y = C+I, और दोनों इक्वेशन से हम लोग को क्या निकला? C+S = C+I, और फाइनली S = I, सेविंग = इन्वेस्टमेंट। सो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड हाउ S = I। Now we will start the new chapter, that is income determination and multiplier। हम लोग इस चैप्टर में दो चीज़ पढ़ेंगे, पहला इनकम डिटर्मिनेशन और दूसरा मल्टीप्लायर। ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसके बाद आपको एक चैप्टर और है इस यूनिट में, एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड, जिसमें इन्फ्लेशनरी गैप, डिफ्लेशनरी गैप हम लोग पढ़ते हैं। और उसमें से एक क्वेश्चन हमेशा आपको एग्जाम में आता है, या तो इन्फ्लेशनरी आता है या डिफ्लेशनरी आता है। इस साल भी आपको एक क्वेश्चन आया था। तो हम लोग देखते हैं कि हियर वी विल लर्न डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड आउटपुट। हियर वी विल आल्सो लर्न हाउ एंड वी विल कंपेयर द एक्चुअल एंड डिजायर्ड सिचुएशन ऑफ इक्विलिब्रियम एंड concept of multiplier. So determination of equilibrium level of income and output, and the comparison of actual and desired situation of equilibrium, we will understand that concept, and concept of multiplier. These things we will discuss in this chapter. So determination of equilibrium by aggregate demand and aggregate supply approach, AD and AS approach. Here we are going to find the equilibrium level of income, means we are
टॉकिंग ऑफ द इनकम ऑफ नॉट एन इंडिविजुअल, एक किसी एक पर्सनल आदमी का हम लोग इनकम को यहाँ पे इक्विलिब्रियम इनकम को यहाँ पे हम लोग नहीं फाइंड कर रहे हैं, बट वी आर गोइंग टू डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ अ कंट्री। यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, होल कंट्री की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे जो अप्रोच हम लोग यूज करेंगे वो ADAS अप्रोच यूज करेंगे, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच। और इस जो इक्विलिब्रियम को हम लोग पढ़ेंगे उसको बोलते हैं शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम। याद रखना है, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम दो तरह का होता है, एक शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम और दूसरा है लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम। सो इन क्लास 12 CBSE we will learn short run equilibrium, and short run equilibrium is the equilibrium which is defined by which was the matter of research for the J.M. Keynes। the J.M. Keynes जो एक महान इकोनॉमिस्ट थे, हम सभी को मालूम है, तो वो जो है शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम का ही जो है आपको एक्सप्लेनेशन किए थे, क्योंकि कीन्स का ये कहना था कि लॉन्ग रन में हम सब डेड हैं, हम लोग को जो कुछ भी करना है इक्विलिब्रियम को, इकोनॉमी को यदि इस राइट ट्रैक पे लाना है, इकोनॉमी को यदि सही करना है, यदि वेलफेयर लाना है, तो हम लोग को शॉर्ट रन में ही डिसाइड करना होगा। 2-4 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल, हम लोग 100 ईयर्स का नहीं सोच सकते हैं, क्योंकि जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट था, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जैसे मार्शल हो गया, स्मिथ हो गया, तो क्लासिकल इकोनॉमिक्स का ऐसा थाउट था कि इकोनॉमी जो है अपने आप इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, लॉन्ग रन में इकोनॉमी जो है अपने आप जो है इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। इकोनॉमी जो है डिस इक्विलिब्रियम में नहीं आ सकता, यानी कि हमेशा जो है जो एम्प्लॉयमेंट है, फुल एम्प्लॉयमेंट वो बना हुआ रहेगा, रिसोर्सेज का, रिसेशन नहीं आएगा, इकोनॉमिक डिप्रेशन नहीं आएगा, और यदि आएगा भी तो थोड़ा दिन के लिए रहेगा, वो जो है लॉन्ग टाइम में जो है, लंबा समय में जो है वो अपने आप ख़त्म हो जाएगा, इकोनॉमी जो है आपका सही हो जाएगा। तो कीन्स बोला कि भैया ये लॉन्ग रन की बात आप क्यों कर रहे हैं, लंबा समय में ठीक हो जाएगा, 100 साल के बाद ठीक हो जाएगा, तो उस समय तो हम सब डेड रहेंगे। तो हम लोग को ऐसा उपाय करना है ताकि शॉर्ट रन में कम समय में ही जो है वो इकोनॉमी आपको सही ढंग से चले, डिप्रेशन से बाहर आए, बूम हो, रिसेशन खत्म हो। तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम। जो कीन्स का जो इक्विलिब्रियम थ्योरी है वो आपको शॉर्ट रन बेसिस है। सो अकॉर्डिंग टू केनेसियन थ्योरी द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इज डिटरमाइंड वेयर planned level of aggregate demand is equal to planned level of aggregate supply. As we discussed that aggregate demand is equal to C plus I and aggregate supply equal to C plus S. Just we discussed, and before this chapter also we discussed how AD and AS is determined. So according to Keynes, when AD is equal to AS, then economy is in equilibrium. जब aggregate demand एंड एग्रीगेट सप्लाई दोनों बराबर हो जाएगा तो उस पोजीशन को हम लोग बोलेंगे इक्विलिब्रियम लेवल, या फिर वो जो पोजीशन होगा, वो जो पॉइंट होगा वो आपको इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम का पोजीशन होगा। एंड हेयर वी कैन सी दैट एग्रीगेट AD इक्वल टू AS एंड C प्लस I इक्वल टू C प्लस S, I इक्वल टू S, ये सब सेम है। तो जो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई जब इक्वल हो जाएगा, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई जब इक्वल हो जाएगा तो उस समय जो आपको इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में होगा। ये आप जेम किन्स का कहना था। तो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम एक्सप्लेनेशन, दैट इज ओनली हेयर लॉस जो स्टेटमेंट है उसको आप समझ गए। बाकी इसको एक्सप्लेन करेंगे with the help of example, with the help of graph in the next class. This is all about today's class. You will remember that aggregate demand is equal to aggregate supply and the economy will be in equilibrium. Thank you.